वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है डिमांड एनालिसिस। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉप एमसीक्यूज फ्रॉम द टॉपिक डिमांड एनालिसिस। दिस टॉपिक हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट जनरल इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, इफ़ you are preparing for JKSSB Panchayat Accounts Assistant job, then this topic is most important for your preparation, for your selection. Without wasting time, let's start. Question number 1 is, the demand for dash is highly inelastic. Here the right answer is, the demand for perfumes is highly inelastic. ठीक है, the demand for perfume is highly inelastic. Question number 2 is, the demand for salt is, answer is inelastic. The demand for salt is inelastic. Next question is, the elasticity of demand of pens is dash. So here the right answer is option B, that is inelastic. The elasticity of demand of pens is inelastic. Next question is A, desire backed by ability to pay and willingness to pay for a commodity is called. Question number 4, and the right answer is demand. A desire backed by ability to pay and willingness to pay for a commodity is called demand. Here answer is, क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चन नंबर 4, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उसे कहते हैं डिमांड. ए डिज़ायर backed by ability to pay and willingness to pay for a commodity is called demand. Next question is, when the price of petrol goes up, demand of car will क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का fall. आंसर इज यहाँ पे fall is the right answer. When the price of petrol goes up, demand of car will fall. Next question is, individual demand is an aggregate of purchasing by dash buyers. Individual demand is an aggregate of purchasing by dash buyers. Question number 6, and the right answer is option C, that is one buyer. Individual demand is an aggregate of purchasing by one buyer. ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल का मतलब ही होता है वन. सो इंडिविजुअल डिमांड इज एन एग्रीगेट ऑफ परचेजिंग बाय वन बायर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्केट डिमांड इज एन एग्रीगेट ऑफ परचेजिंग. अभी पहले था इंडिविजुअल डिमांड, अभी आ गया मार्केट डिमांड. तो मार्केट डिमांड इज एन एग्रीगेट ऑफ परचेजिंग बाय, क्वेश्चन नंबर 7, एंड द राइट आंसर इज ऑल बायर्स. यहाँ पे ऑल बायर्स इज द राइट आंसर. मार्केट डिमांड इज एन एग्रीगेट ऑफ परचेजिंग बाय ऑल बायर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इम्प्लिसिट डिमांड इज आल्सो नोन एज. इम्प्लिसिट डिमांड इज आल्सो नोन एज, आंसर इज डिराइव्ड. ठीक है, डिराइव्ड डिमांड कहते हैं इसको. इम्प्लिसिट डिमांड इज आल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनडायरेक्ट डिमांड इज आल्सो नोन एज डैश डिमांड. क्वेश्चन नंबर 9, इनडायरेक्ट डिमांड इज आल्सो नोन एज derived. Option D is the right answer. Next question is, the demand for consumer goods is dash demand. The demand for consumer goods is option C, that is direct demand. The demand for consumer goods is direct demand. Question number 11 is, the law of demand is applicable to dash goods. The law of demand is applicable to normal goods. Option D is the right answer. Next question is, when less is purchased at the constant price, it is called dash in demand. So when less is purchased at the constant price, it is called decrease in demand. When less is purchased at the constant price, it is called decrease in demand. Next question is, when price of commodity rises, the demand for it dash. When price of commodity rises, the demand for it falls. Option A is the right answer. देखो ये थोड़े से कॉमन सेंस के क्वेश्चन भी हैं फ्रेंड्स. ऑप्शन A is the right answer. When demand of commodity rises, the demand for it falls. Next question is,
The slope of demand curve is dash in the case of inelastic demand. The slope of demand is dash. तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा the slope of demand curve is steeper. क्या है steeper? ऑप्शन बी. In the case of inelastic demand, the slope of demand curve is steeper in the case of inelastic demand. Question number 15 is cross elasticity of demand is applicable to dash goods. Cross elasticity of demand is applicable to dash goods. Here answer is cross elasticity of demand is applicable to substitute goods. ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्रॉस elasticity of demand is applicable to substitute goods. Next question is perfect elasticity demand curve is dash. Perfectly elastic demand curve is dash. Perfectly elastic demand curve is क्या है? Question number 16 and the right answer is option A, that is horizontal to OX minus axis. Horizontal to OX minus axis. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दिस वन. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स. अभी जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है रिपीट किए हैं, इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं. अभी आप जो है इन क्वेश्चंस का गैस लगाइए. मैं खाली क्वेश्चन बोलूँगा और आंसर जो है आपने टिक करने हैं. इनडायरेक्ट डिमांड इज आल्सो नोन एज डैश डिमांड. ठीक है, इनडायरेक्ट डिमांड इज आल्सो नोन एज डैश डिमांड्स. मैंने आपको बताया था क्या होती है वो, ड्राइव्ड. क्या होती है? ड्राइव्ड डिमांड. जो इनडायरेक्ट डिमांड होती है उसे हम ड्राइव्ड डिमांड भी कहते हैं. नेक्स्ट है द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स इज डैश डिमांड. द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स इज डैश डिमांड. सो हियर द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स इज क्या होता है फ्रेंड्स? आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा. उसे कहते हैं डायरेक्ट डिमांड. द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स इज डायरेक्ट डिमांड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल टू डैश गुड्स. द लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल टू डैश गुड्स. क्वेश्चन नंबर 11. आई होप आपने लगा लिया होगा आंसर. द लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल टू नॉर्मल गुड्स. क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हेन लेस इज परचेज्ड एट द कांस्टेंट प्राइजेज इट इज कॉल्ड. क्या होता है फ्रेंड्स इसमें? आई होप आपने लगा लिया होगा आंसर. डिक्रीज इन डिमांड. ठीक है, व्हेन लेस इज परचेज्ड एट द कांस्टेंट प्राइजेज इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड. क्वेश्चन नंबर 12. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेज द डिमांड फॉर इट क्या होता है? फॉल होती है. सो द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज क्या होती है फ्रेंड्स यहाँ पे? स्टीफर इन द केस ऑफ इन इलास्टिक डिमांड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल टू. यहाँ पे क्या था? ऑप्शन बी, दैट इज सब्सटीट्यूट गुड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज हॉरिजॉन्टल टू OX माइनस एक्सिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी चलते हैं एक्सरसाइज पे द्वारा. क्वेश्चन नंबर 17. इफ ए commodity has many substitutes then its demand becomes. If a commodity has many substitutes then its demand becomes क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 17. मोर इलास्टिक. क्या हो जाता है वो? मोर इलास्टिक. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज as price falls demand dash. Question number 18. As price falls demand dash. Here as price falls demand expands. ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 इज द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डैश. द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. दिस इज द राइट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. In case of gift and goods, the income elasticity of demand is dash. In case given, in case of given, given, in case of given goods, यहाँ पे बोला गया है इन केस ऑफ गिफन गुड्स. सो यहाँ पे मैं आपको जो है गिफन गुड्स की डेफिनेशन बताना चाहूँगा. ए गिफन गुड इज़ ए लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज एज द प्राइस इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा. हम समझ गए. यानी कि एक जो गिफन गुड्स होती है इज़ ए लो इनकम वाली होती है, जिसमें जो है बहुत कम इनकम हो. ठीक है. सो यहाँ पे पूछा गया है इन द केस ऑफ गिफन गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़. तो यहाँ पे हमने पहले ही जो है डेफिनेशन पढ़ ली है. क्या होती है उसमें. क्वेश्चन नंबर 20. हेयर द राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ नेगेटिव. मैंने बोला कि बहुत कम होती है, सो आंसर इज़ नेगेटिव. इन द केस ऑफ गिफन गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ नेगेटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़. अभी देखो नॉर्मल गुड्स में क्या होता है. नॉर्मल गुड्स में क्या है. इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ पॉजिटिव. ठीक है. सो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक 2. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट आवर लेटेस्ट वीडियोज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स. प्रिपेयर बेल, परफॉर्म बेल. हमारे जो कुछ फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि बहुत ही अच्छे और हमारे चैनल को सपोर्ट करने वाले हमारे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें कमेंट किया है कि सर आप जो है जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स के बारे में भी जो है वीडियोस बनाएं. सो फ्रेंड्स, माय स्टडी चैनल इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है और जल्द ही आपको J&K के करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियो मिलने वाला है. सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.